Hello guys, all good, all good. Good afternoon, guys. I hope all of you are doing well today. As you guys know, we've been bringing you all these online sessions to keep your motivation levels up during these unusual circumstances that we have today. So, we have another very special guest here with us today. He needs no introduction at all. He's a very globally renowned photojournalist, magnum photographer, and Padma Shri Award winner, Mr. Raghu Rai. Raghu sir, thank you so much for joining us today. Wonderful talking to you and everyone who's online available. Right. Yeah. Sir, because everyone's here to listen to what you have to say, I'll quickly hand over the reins of today's proceedings to you, sir. Okay. Over to you, sir. Thank you. Hi, everyone. We know that Corona has shut us down, locked us in, and we are given very few choices. But of course, it's a very dangerous time, and anything can happen if you don't take care and if you don't stay at home. So that is the first thing I insist that everybody should stay home and take care of themselves and their family and dear ones. Now, second thing, since this is an unpredictable, dangerous disease, not enough people know about it, exactly how to go about it. So leave it alone, stay away from it. But you see, every dangerous, negative thing has some good results also and implications also in this case. Now, I am sitting, actually, just now I'm speaking to you from Raghu Rai Center for Photography, which is our farmhouse also and Center for Photography. Now, we are sitting with the nature. It's springtime, flowers, birds, fragrances all around. So this is something very beautiful that now that we can't do anything else, at least we can be in touch with nature, Mother Nature. Because Mother Nature teaches us a lot about ourselves and about nature's magic. अब देखिए एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि pollution levels have disappeared. There is no pollution at least in Delhi, which was the worst polluted city. So अगर दिल्ली में ये pollution level इतना कम हो गया है, almost चली गई है, और visibility इतनी बढ़ गई है, तो nature हमें ये कह रही है कि तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा. तुमने गाड़ियां चला चला के, इंडस्ट्रीज चला चला के, कचरे जला जला के और गार्बेज बना बना के सत्यानाश किया. और अब जब हम बंद हैं तो नेचर इज सो हैप्पी, बर्ड्स आर सिंगिंग एवरीवेयर. और इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है. फिर दूसरी बात, और वो और भी जरूरी बात है, वो ये है कि हम सब घरों में बंद हैं अपने अपने. तो घरों में कोई अपने बीवी बच्चों के साथ है, कोई अपने दोस्त के साथ है, कोई अपनी स्वीटहार्ट के साथ है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ है. तो continuously for days together हमें मौका दिया गया है, कोरोना ने हमें मौका दिया है कि भाई कभी तो अपने डियरेस्ट वंस के साथ जीना, उनको समझना, खुद को समझाना, ये इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जीना सीखें. कितनी बार आप अपने बच्चों को हग करते हैं, उनको प्यार देते हैं, कितनी बार आप अपने पेरेंट्स की सेवा में
कुछ करने की हिम्मत करते हैं, या आपकी हस्बैंड या आपकी बीवी को कितने करीब से जीना और उसके प्यार में रिझना और रिझाना आता है। हमारे पास समय नहीं है, हम भागे फिर मारा मारी में, सब मारा मारी में, सबको प्रोफेशनल बन के कहीं ना कहीं पहुंचना। तो इतना कमाल का टाइम है कि नेचर ने हमें टाइम दिया है कि अपने घर में अपने प्यारों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ फिर नए तरीके से संबंध और मैजिक रिलेशनशिप क्रिएट करें। तो वेरी ट्रू ये सर। बड़ी है। और उससे एक और बड़ी बात है, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के अलावा, कि हमें पहली बार जिंदगी में इतने दिन, इतने मोमेंट्स मिल रहे हैं कि जब दिन खत्म हो जाता है, शाम आती है या रात को आप सोने लगते हैं, तो तुम्हें खुद के साथ भी बैठना पड़ता है। नाउ यू हैव टू कन्फ्रंट योरसेल्फ, फेस योरसेल्फ, हु यू आर, वेयर यू आर गोइंग, व्हाट यू आर डूइंग। तो अपने आप को भी, अपने खुद के साथ बैठना, खुद को समझना is a very essential part of creativity. ये कहा जाता है to know thyself is to know the world. अगर आप खुद को समझने लग गए, अपने बिहेवियर पैटर्न को समझने लग गए, अपने रिस्पॉन्सेस को समझने लग गए हैं, तो दुनिया आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो ये एक और बहुत बढ़िया समय निकला है। और इस समय में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने दोस्त को करीब से देखना, और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ऐसे स्पेशल मोमेंट्स और फीलिंग्स हैं दैट यू कैन फोटोग्राफ एट होम। मुश्किल ये कि इस पे हम आपको फोटोग्राफ्स नहीं दिखा सकते, नहीं तो मैंने काफी फोटोग्राफ्स, क्योंकि मैंने बुक भी की थी और एग्जीबिशन भी की थी 4-5 साल पहले, फैमिली एंड फ्रेंड्स द एल्बम। तो मैं तो देखिए, असाइनमेंट जो होती है या प्रोजेक्ट जो होता है वो तो होता है, पर जब आप प्रोजेक्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वही होगा तो हम फोटो कैमरा निकालेंगे। कैमरा तो तुम्हारा हर समय तैयार होना चाहिए। मैं घर में होता हूँ बीवी बच्चों के साथ, वहां भी तैयार। मैं अपने खेत में हूँ तो वहां भी तैयार। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कार में जा रहा हूँ, वहां भी। प्लेन में भी मैं जब उड़ रहा हूँ तो तब भी बादलों से खेलता जाता हूँ। तो ये जो बात है कि अब आप बंद हैं अपने घर में, आपको नेचर ने, कोरोना वायरस ने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया है कि बेटे, द फेस योर क्लोज वर्ल्ड वेरी ऑनेस्टली विद सेंसिटिविटी एंड केयर। राइट। तो ये बेसिक लेसन है उसमें हमारे पास। आप कुछ पूछेंगे? सर मैं आई वाज आई थिंक अभी फॉर द व्यूअर्स, अभी आई थिंक थोड़ा फोटोग्राफ्स क्लिक करने में आई थिंक दे माइट नॉट बी इन द राइट मेंटल स्पेस, बिकॉज काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग भी चल रही हैं। तो उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें सर। क्या चल रही है? सर लाइक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, देयर लॉट ऑफ सफरिंग एंड ऑल ऑफ दैट आल्सो गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द वायरस। तो कई बार लोगों का थोड़ा मेंटल स्पेस नहीं बन पाता है एक अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करने का। तो अगर उस रिगार्ड में आप कुछ सजेशंस देना चाहें, कुछ कहना चाहें सर। जब आप वॉर कवर करने जाएंगे तो आपको वॉर की भी तस्वीर खींचनी पड़ेगी। आप भोपाल गैस ट्रेजेडी कवर करने जाएंगे जहां हजारों लोग मरे हैं और मर रहे थे जब हम गए थे, वो भी आपको करना पड़ेगा। राइट। तो कोई भी ट्रेजेडी जब आती है तो उसको समझ के और उसके बोझ में ना दब के, फिर भी एनवायरनमेंट को, हालात को समझ के, और अपनी सराउंडिंग्स, अपने लोग या जो भी हो रहा है आपके आसपास, उसको फोटोग्राफ करना बिकम्स वेरी एसेंशियल। और करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव न्यूज घूम रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अपना ख्याल करके, मास्क लगा के, डिस्टेंस रख के, फिर भी दुनिया में बहुत कुछ किया जा सकता है तरीके से।
अब सवाल ये है कि आप कैसी सिचुएशन में हैं आज। अगर आप राइट। किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ एनजीओ के साथ जो वो सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या सेवा कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं गरीब लोगों को, या मेडिकल हेल्प मिल रही है डॉक्टर्स के थ्रू, या अपने ही घर में आपके कोई अगर किसी को क्वारंटाइन किया हुआ है तो उसकी लोनलीनेस, उसका अकेलापन भी आप कैप्चर कर सकते हैं। देखो, डिप्रेशन और जो सैडनेस है वो बोझ बन के तुम उसके नीचे दब जाओ, वो शानदार बात नहीं है। कलाकार जो उससे राइट। राइज के फिर दुनिया को समझता है और देखता है। तो नेगेटिव न्यूज के बोझ में दबना और प्रेशर में दबना किसी भी चीज के गलत बात है ना। स्पिरिट तो जिंदा रहनी चाहिए। वेरी ट्रू सर। और दुनिया में अगर एंड मारामारी है तो आप भी मारामारी का के आइडिया से ही मारामारी में चले जाएं, तो ये तो वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। है ना। एंड सर जैसे आपने बोला अभी एयर पोल्यूशन लेवल काफी कम हो गए हैं। कम क्या है, अलाउड वेयर्स। पोल्यूशन है ही नहीं अब, which is- बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और विजिबिलिटी इतनी खूबसूरत, लाइट इतनी खूबसूरत कि फोटोग्राफी के लिए कलर कलर क्वालिटी एग्जैक्टली। होगी। वेरी ट्रू सर, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अपने घरों की छतों पे जाके लैंडस्केप फोटोज, सिटीस्केप्स ऐसी चीजें भी कर सकते हैं, तो एक बार थोड़ा बिल्कुल। पॉजिटिव चीजें देखें तो। नहीं, और दूसरी बात ये कि देखिए कि this genre of photography, this style of photography, or that style of photography, for me there is no style. Anything राइट। that touches me matters to me. तो जैसे अब लॉकडाउन की वजह से आप जहां भी हैं उस सिचुएशन को यूज करिए, उसमें से ढूंढिए, बिल्कुल। begin to बिल्कुल search सर। all over again in whatever राइट। situation you are, in order to find something different and new. ये नहीं कि जी मैं तो पोर्ट्रेट करता हूँ या मैं तो जी लैंडस्केप करता हूँ, मैं घर में बैठ के क्या करूँ। आप क्या सोचते हैं लैंडस्केप के अलावा दुनिया नहीं जीती है या स्ट्रीट फोटोग्राफी के अलावा और फोटोग्राफी नहीं होती। घर में भी जो आप हैं वो भी डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का स्टाइल हो सकता है, उसमें भी पोर्ट्रेचर हो सकता है। अब देखिए, निकॉन का एक नया लेंस आया 10.5 मिलीमीटर, विच इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक फिश आई। मुझे आसमान से बहुत प्यार है और मेरे यहाँ पे इतने पेड़ हैं, तो वो ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज का एंगल कवर करता है। और ट्रू सर। परसों भी बादल आ गए थे, बारिश हुई थी, उससे पहले भी बादल आ गए थे। बर्ड्स हैं, आसमान है, पेड़ है, पौधे हैं। ढूंढने लगो तो बहुत है, नहीं ढूंढो तो घर में बंद रहो। तो ये सारी बातें हैं बिल्कुल सर। कि जीना जो है वो लार्जर अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हर चीज से रिलेट करने से है। और अच्छी बात ये भी आ गई कि आज आपके पास इजाजत नहीं है कि आप जो करना चाहते हैं जैसी फोटोग्राफी वो करें। अब आपकी क्रिएटिव चैलेंज आ गया है कि आप जहां हैं उसमें से आप क्या ढूंढ सकते हैं, विच इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। और मेरे लिए तो आई हैव बीन फोटोग्राफिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर, so I am quite बिल्कुल used. सर। But some of those youngsters who think I'll want to do this kind, one kind is not enough. Because one kind, if you keep pursuing that, it also begins to give you repetitive pictures. But when you वेरी ट्रू। connect with other feelings, other ideas, other situations, then you become more versatile. So this is the time to become versatile in your own. राइट सर। एग्जैक्टली सर। एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट सर, कि जैसे मैं बोल रहा था, आपने भी बताया एयर पोल्यूशन लेवल कम हो गए हैं सर, बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स वापस सिटीज में आने शुरू हो गए हैं सर। बिल्कुल। तो वो वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनको फोटोग्राफ कर सकते हाँ, हैं। कुछ भी वही तो है ना। और आप देखिए, और जैसा तुम कह रहे थे कि छत पे जाके फिर से देखो अपना नेबरहुड, एग्जैक्टली। इवनिंग लाइट में देखो, अर्ली मॉर्निंग में देखो कि वहां से कैसा दिखाई देगा। और हमारी छतें तो खाली नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ लाइफ तो होती है, बिल्कुल समझे ना। सर, बिल्कुल। फोरग्राउंड लेके कुछ एटमोस्फियरिक शॉट लेके
अगर आप ढूंढने लगते हैं तो कमी नहीं है सब्जेक्ट मैटर की। और तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने परिवार में फिर से ढूंढो कि वो कौन है तुम्हारे लिए, वो कैसे राइट, मैटर करते हैं तुम्हें, समझिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एंड तो आई ये, थिंक दिस इज ऑल्सो। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है ये देखिए, हाँ जी सर। कहाँ पे ज्यादातर यंग लोग मुश्किल में चले जाते हैं कि उनके पास आइडियाज हैं, उन्होंने तरह तरह की तस्वीरें देखी हैं और तरह तरह की उनकी चाह है कि हम ऐसा काम करें वैसा काम करें, है ना। हर एक की चाह होती है कि मैं ऐसा काम करूंगा, है। और राइट, कितनी दुनिया भर के आइडियाज हैं, दुनिया भर की फोटोग्राफी आप देखते हैं, उनका इन्फ्लुएंस है तुम्हारे पे। तो आज चाह का दिन नहीं है, बिकॉज वी आर लॉक्ड राइट डाउन। सर। ये दिन है फिर से एक्सप्लोर करने का, वट एवर इज, जो तुम्हारे सामने अवेलेबल है। जब आप उससे राइट, कनेक्ट करने लगेंगे, फिर से देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, जैसे मैंने कहा, अपने ही घर के, अपने ही प्यारे लोग, या अपने ही लोग जो, या कोई भी ऐसी किसी की रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है बीवी के साथ या किसी बच्चे के साथ, उसी के साथ फिर से देखो, उसको समझने की कोशिश करो और राइट सर। फोटोग्राफी करो। तो कितनी राइट बड़ी सर। बात है कि आप फिर से ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स जिंदगी के एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आपको वो राइट, एक्सट्रीम वाइड एंगल का बता रहा था। अब मैं क्या करता बिल्कुल। हूँ, शाम की लाइट में मैं उसको बाहर ले जाता हूँ, उसके साथ में फोटोग्राफ करता हूँ आसमान को और पेड़ों को, और कहीं कहीं कुछ स्पेशल ढूंढता हूँ जो उस फ्रेम में, उस स्पेस में आए। तो जब आप ढूंढने लगते हैं तो कुछ ना कुछ नेचर भेजती है, मिलता है। ये दिस इज बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस यू हैव टू बिल्ड इन योरसेल्फ, दैट व्हेन यू बिगिन टू एक्सप्लोर you shall find something meaningful, always, always. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। एंड आई थिंक सर इसमें थोड़ा अप्रोच का भी मैटर है। इफ़ यू अप्रोच दिस एज एन असाइनमेंट, आप सोचो कि 14 अप्रैल तक यही मेरी असाइनमेंट है, मुझे इसी सिचुएशन में इसी जगह पे फोटोग्राफ्स क्रिएट करने हैं, तो आई एम श्योर आप अच्छी फोटोग्राफ्स क्रिएट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कर पाएंगे, लेकिन जो मैं मेन बात कहने लगा था पूरी नहीं की, वो ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्रिएटिविटी में, अच्छा, फोटोग्राफी में। देखिए, भगवान ने ये सबसे बड़ा कंप्यूटर हम सबको दिया है, ये हमारा सिर, हेड, अब बिल्कुल सर। जहन, दिमाग, ये जो है, इसकी मेमोरी आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना कुछ आप पढ़ेंगे, जितना कुछ आप देखेंगे, वो इसमें स्टोर होता रहेगा। और राइट सर। इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, आइडियाज, साइट्स, साउंड्स, फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग, है ना। तो राइट सर। ये जो कंप्यूटर हम सब के सिर पे लगा है, जो हमें कंट्रोल करता है, लेकिन क्रिएटिविटी जो है, आइडियाज और थॉट से बियॉन्ड होती है। और क्रिएटिविटी राइट, जो है, वो फीलिंग्स की दुनिया है। आइडिया या फोटोग्राफ किसी की आपने अच्छी देखी, वो फोटोग्राफ तो होगी, और जो राइट आइडिया सर। के हैं, वो आइडिया जो है वो आपके दिमाग में, वो दुनिया में उस वक्त सामने आपके नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कोई, लेकिन आपके सामने जो है। अब क्या है, हम आंखों से देखते हैं, तो हमारी जी आंख सर। अक्सर हमारे दिमाग से जुड़ी है, कि जो हमने वो देखा ये भी वैसा है, अच्छा है, खींच लो। रॉन्ग। आपकी आंखें जब दिमाग से जुड़ी होती हैं, तो दिमाग में जो भी स्टोर किया हुआ है, वो बासा और पुराना है, वो किसी ना किसी ने किया हुआ है ना। राइट, राइट सर। तो वो जो दिमाग से आप सोच के फोटो खींचते हैं, वो सेकंड रेट फोटो होती है। पर अगर आपकी आंखें आपके दिल से, आपकी फीलिंग से जुड़ जाएंगी, वो क्रिएटिविटी, राइट, वो तुम्हारा पर्सनल एक्सप्रेशन है। पर्सनल क्या होगा, तुम और राइट, तुम्हारा दिल और तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी फीलिंग, है ना, वो है राइट सर। पर्सनल। दिमाग जो है उसमें सब बोरोड है, या राइट, इधर उधर से
देखा सीखा वाली बात है, वो तुम्हारा नहीं है, वो तो पूरा जो दुनिया में हो चुका है उसकी कॉपी हो तुम। पर जब आप फीलिंग से, सेंसिटिविटी से दुनिया को देखने और समझने लगते हैं, तब आपको सब कुछ अलग और नया दिखाई देने लगता है। तो very नाउ true. द टाइम व्हेन यू आर फेस टू फेस विद योर फैमिली, विद योर सराउंडिंग एंड फेस टू फेस विद योरसेल्फ इज द टाइम कि अपनी Right, sir. अपनी फीलिंग से जोड़ो और नई तरह की फोटोग्राफी और मोमेंट्स ढूंढो। This is something so important in creativity, especially in photography. इसीलिए आप इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे या और जगह देखेंगे कि इतनी जो मारा मारी फोटोग्राफ्स रंग बिरंगी आती हैं इंस्टाग्राम पे, ज्यादातर सब एक दूसरे की कॉपी, कुछ ओरिजिनल मान, Right. क्योंकि सब दिमाग से खींची हुई तस्वीरें, सोच समझ के खींची हुई तस्वीरें, फीलिंग से जो खींची तस्वीर है उसकी बात अलग है ना। Very true, sir. आप कोई खास आदमी को देखते कहते यार बड़ा दिलदार आदमी है। दिलदार क्या है? दिल की बात करता है, सेंसिटिव है, उसको हम दिलदार कहते हैं। फोटोग्राफर शुड बी दिलदार एंड बिल्कुल दीवाना, सर. उसके अलावा कुछ नहीं। तो Right, sir. आप दिलदार नहीं है और दीवाने नहीं है तो आप सेकंड रेट कॉपी हैं दुनिया की। True, sir. True. Very true. And so, and I think this brings up a good point, sir. आपने कहा क्रिएटिविटी दिल से आती है, फीलिंग से आती है. बहुत फोटोग्राफर्स कई बार ये बोल देते हैं कि मैं अच्छी फोटोग्राफ नहीं खींच पा रहा, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास ये लाइट नहीं है और ये सब नहीं है. हाँ, आई थिंक इन टेक्निकलिटीज में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज हैविंग ऑल द इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड इज नॉट द प्री-रिक्विजिट टू हैविंग अ गुड फोटोग्राफ. मैं आपको बताऊं कि जब निकॉन D100 आया था पहला डिजिटल कैमरा, वो 6 मेगापिक्सल था और जी सर. वो रॉ जो है, रॉ पे रखो तो आप वो 1-1.5 तस्वीर खींचता था, दूसरी के लिए आपको वेट करनी पड़ती थी। और उसके राइट साथ सर. किट लेंस आता था 1855 जो आज भी आता है, पर जो आज के लेंसेज हैं दे आर वेरी इम्प्रूव्ड क्वालिटी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्कुल सर. इज दिस कि वो किट लेंस जो था, मैंने 2-2.5 साल तक सिर्फ किट लेंस के साथ ही फोटोग्राफ किया, बहुत कुछ। और उसकी इनिशियल जो किट लेंसेज थे वो इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं थी, पर अगर मैं f8 11 पे 16 पे शूट कर रहा हूँ तो शार्पनेस तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि मैं हर चीज बिल्कुल फोकस सर. रखता हूँ तो अपर्चर बढ़ा के रखता हूँ। तो उस जमाने में मैंने, अगर मैं किसी को कहूँ कि मैंने 2 साल 2.5 साल किट लेंस यूज किया, कोई प्रोफेशनल बनेगा नहीं कि इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी आपके पास जो भी इक्विपमेंट, और जो मेरी फर्स्ट पिक्चर थी वो एक फिक्स लेंस कैमरा के साथ थी, ओके. और जो मेरा इनिशियल शुरू का काम था वो भी एक 50 मिलीमीटर से किए हुए काम थे। पर क्योंकि बीच में कहीं कहीं जब मैं काम करता था तो फीलिंग के साथ जब हो करता था तो अच्छी तस्वीर बन जाती थी। तो बिल्कुल. इक्विपमेंट एक अलग बात है। हमारे जमाने में जूम लेंस होती ही नहीं थी टिल 80s तक, हमें मुश्किल थी। 80s से पहले पहले जूम लेंसेज नहीं होते थे। फिर 2870 आया निकोन का लेंस, जो छोटा भी था अच्छा भी था, एंड वी थॉट व्हाट अ ग्रेट थिंग। और बड़ी बात ठीक है, तब 80s तक हमें कैमरा इक्विपमेंट लेंसेज जो थे अपनी चॉइस के नहीं मिलते थे। किसी दोस्त को कहा, फिर 28 मिलीमीटर 2.8 लेंस आ गया, किसी एक और दोस्त को कहा तो उसने 200 मिलीमीटर दिला दिया। इस तरह से हमारे पास इक्विपमेंट था 50, 28, 200। आज ऑफ द शेल्फ अब दुनिया भर की जूम, दुनिया भर के लेंसेज और ब्लॉक लेंसेज उठा सकते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बढ़िया काम करने लगेंगे। अच्छा, अब देखिए हमने 50 मिलीमीटर पता नहीं कितने साल तक उसी से काम किया। फिर जब 28 मिलीमीटर आया उसके साथ में मुझे वाइट स्पेस एक्सपीरियंस की बड़ी चाह थी। तो मैंने ये देखा कि हमें इतना अंदाजा हो जाता था कि
ये तस्वीर के लिए 50 चलेगा या 28 चलेगा। और राइट। जब 105 मेरे पास आया, फिर मुझे 105 मैंने इतना यूज किया कि मुझे उसका बिल्कुल स्पेस का एक्सपीरियंस था कि लाइव पिक्चर्स में भी, स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी मुझे कौन सा लेंस लगाना है। तो हमें फोकल लेंथ की और उसकी स्पेस समझ में आई। आजकल इतने सुपर वाइड जूम लेंसेज हैं जिसमें डिस्टॉर्शन होती है, जिसमें कचरा होता है, और लोग खुश होते हैं कि इतना कुछ उसमें आ जाता है। उसको इस्तेमाल करना आना बहुत बड़ी बात है कि आप बिल्कुल स्पेस सर, बिल्कुल। शॉट नहीं करें। तो ये इक्विपमेंट का जो खेल है 1855 और जो फुल फ्रेम में 24 105 2485 आते हैं, is more than enough to do any kind of photography. But when you move further up, then if you want to do wildlife photography, you want to do sports photography, then you need big lenses and zoom lenses. And if you want to do interiors, then you need wide angles. So depend करता है। पर एवरेज राइट। फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में आप यू कैन बिगिन विद एनी लेंस। और बड़ी राइट सर। ये जो कह रहा हूँ वो ये बड़ी बात ये है कि अपनी फोकल लेंथ को समझें कि किस वक्त कितनी फोकल लेंथ से काम होगा। ये बहुत जरूरी वेरी है। ट्रू सर। आपके पास 4 लेंसेज हैं और जूम लेंसेज हैं, बड़े बड़े और छोटे, वाइड वाइड, और आप पगला जाएं और कुछ भी गलत लेंस लगा के खींचते रहें, तो बात तो ना बनी ना। राइट 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 सर। वेरी ट्रू सर। मैंने बहुत असाइनमेंट्स पे देखा है, लोग बहुत सारे लेंसेज लेके आते हैं और वो आधा टाइम सिर्फ लेंसेज बदल ही रहे होते हैं, बिकॉज उनको वो। वही तो बात है, देखो कि आप सिचुएशन को समझ के कि ये सिचुएशन में ऐसी फोटोग्राफ कर रहा हूं तो कौन सा लेंस आइडियल रहेगा। अब जैसे ये कि हम इस अभी की बात करें ना, कि अभी हम घरों में बंद हैं, आइडियल फोकल लेंथ बिल्कुल सर। 28 मिलीमीटर घर में फैमिली एनवायरनमेंट की करने की। और हो तो 24 पे चले जाओ। पोर्ट्रेट करना बिल्कुल सर। 50 पे ले आओ या 100 पे, 105 पे ले आओ। आपको इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो आज बिल्कुल सर। बिल्कुल। ये दिनों में तो आपके पास जो एक जूम लेंस जो है ना, इवन किट लेंस भी जो है, शुड बी इनफ फॉर यू टू डू समथिंग मीनिंग। ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। सर बिकॉज अभी हम थोड़े पुराने इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, जैसे आप बता रहे हैं आपने जब शुरू किया तो कैसा इक्विपमेंट था, सब फिल्म से डिजिटल हुआ, डीएसएलआर आए, अब आजकल मिररलेस कैमरा इज द न्यू थिंग। हाँ आई एम श्योर आपने भी यूज किया होगा। तो हाँ। व्हाट डू यू फील अबाउट द न्यू जनरेशन ऑफ इक्विपमेंट सर? हम्म। तो नहीं, क्वेश्चन क्या था? सर द मिररलेस जो है, द मिररलेस कैमरास, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट सर? क्योंकि वो शुरू के कैमरा से तो बहुत डिफरेंट हैं। हाँ नहीं, देखिए जो मिररलेस कैमराज हैं उनका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि वो बड़े लाइट हैं। हम्म? राइट सर। और उनकी क्वालिटी वही वैसी ही है जैसी सिंगल लेंस रिफ्लेक्सेस की है। अब राइट। मेरा फेवरेट जो है 850 है, निकॉन 850, जी। जिसकी राइट सर। ऐसी मलाई जैसी क्वालिटी है। इवन इन लो लाइट्स आई हैव कंपेयर्ड इट विद अदर कैमरास। तो लो लाइट में भी, डार्क एरियाज में भी उसके पिक्सल जो हैं बंधे हुए होते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। बिल्कुल सर। भी उसी उसी सेंसर से शायद बनता है। लेकिन फर्क ये है कि मिररलेस मैं तब यूज करता हूँ जब मैं बड़ी आसानी से जनरल फोटोग्राफी करने निकलता हूँ, क्योंकि राइट। मैंने सारी जिंदगी सिंगल लेंस रिफ्लेक्स यूज किया है। But many of the young photographers who've never used single lens reflex, for them mirrorless is a very good idea, you know, क्योंकि राइट। मुझे उसमें पूरा what is in focus, what is out of focus, वो जानने की जरूरत होती simultaneously when I'm taking pictures। तो उसका बिल्कुल सर। ये आदत पड़ी हुई है। पर ये भी है कि मैं ये भी कहूँगा कि मैं जब फोटोग्राफी करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन आई सब कुछ फोकस में देखती है।
तो मेरी हर तस्वीर में हर चीज फोकस में होनी चाहिए। तो जब लाइट, नॉर्मल लाइट में, डे लाइट में खींचता हूँ तो मैं 11-16 अपर्चर रख के खींचता हूँ, ताकि फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन फोकस। तो बिल्कुल सर। जब आप ऐसा अपर्चर यूज करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी, फिर तो आप कोई भी लेंस, कोई भी कैमरा कहीं भी यूज करते हैं तो इट वर्क्स वेरी वेल। राइट सर। सर अभी जैसे आपने कहा कि फॉर अ बिगिनर मिररलेस कैमरास काफ़ी अच्छे हैं। सो आई थिंक दैट्स ट्रू सर, फॉर अ बिगिनर मिररलेस पे फोटोग्राफी सीखना, अपना हाथ एक कैमरा पे बिठाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, बिकॉज इवन बिफोर यू क्लिक अ पिक्चर आपको पता लग जाता है कि आपकी कैसी, अंदाज़ा मिल जाता है कि आपको फोटोज़ कैसे आने वाली हैं। या यू थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट सर? अच्छा है नए फोटोग्राफर्स के लिए? नहीं, वो तो देखो, वो तो फायदा है कि आपको दिखाई देता है, लेकिन मेरे जैसे आदमी को सिंगल लेंस रिफ्लेक्स में एग्जैक्ट फील आता है, क्योंकि राइट। मिररलेस में अक्सर तकरीबन वो सभी कुछ फोकस में ही दिखा रहा होता है। पर ये है कि लाइट वेट होने की वजह से उनका फायदा ये भी है कि आप किसी भी सिचुएशन में, और उनके ब्लॉक लेंसेज भी इतने छोटे छोटे हैं, निकोन वाले, निकोन के भी जितने हैं, तो वो भी उसका फायदा है। राइट सर। बट डिपेंड, where your mind and spirit feels good about, that's what you राइट सर, राइट। बिकॉज सर लाइक आई बिलीव दैट अ कैमरा इज ऑलवेज अ टूल सर, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। and what suits your temperament also is very important now. राइट सर, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। सर अगर इफ यू डोंट माइंड, अगर किसी को, जो घर बैठे हैं लोग, उनको एक तो आइडियाज देने ऑफ probably assignments that they can do, यहाँ पे something like that. इस पे हम इंटरेक्शन नहीं है हमारा किसी के साथ। सर है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड उन्हीं के बेसिस पे आई एम आस्किंग यू सर। काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि हम घर बैठे बैठे कैसी फोटोज खींचे। हमने कुछ बात की है उसके बारे में, बट इफ यू कैन गिव देम स्पेसिफिक सर, नहीं कि नहीं, वो कैसे, क्या कर सकते हैं। शुरू किया है था कि घर में बैठे बैठे कि वही माँ बाप, वही बीवी, या वही बच्चे, या वही हस्बैंड उसको फिर से समझने की कोशिश करे फीलिंग से, और उसी को फोटोग्राफ करे, समझे ना। बिल्कुल सर। या तुम्हारा नेबरहुड, तुम्हारी बैल्कनी से स्ट्रीट लाइट बड़ी अच्छी दिखाई देती है, वो भी है पॉसिबिलिटी। और उसमें भी बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैल्कनी से खड़े स्ट्रीट लाइट ही खींचे। बैल्कनी में अगर आपका कोई अपना खड़ा है, उसको फोरग्राउंड में लेके पीछे स्ट्रीट लाइट भी हो सकती है, ताकि उसमें पर्सपेक्टिव भी बढ़ जाए। लेकिन बिल्कुल। फिलहाल, अच्छा, जो सेल्फीज मारते रहते हैं now is the time to sit with your family in front of a mirror or in reflections to find a meaningful family picture। राइट। कितना कुछ हो सकता है। राइट। ईच डे, इसी आप अपने आप को हर रोज एक दिन नया टास्क दे दें कि अच्छा, वो मेरे घर की वो स्पेस बड़ी अच्छी है, अगर हम वहां बैठ के कुछ करते हैं तो उसका एटमोसफियर, एनवायरनमेंट अच्छी आएगी। दूसरे दिन आप अपनी बैल्कनी में बैठ सकते हैं, तीसरे दिन अगर आपके पास टेरेस है वहां बैठ सकते हैं, चौथे दिन आप बिल्कुल। नीचे अपने गेट पे भी खड़े होके वहां से भी जिंदगी आती जाती देख सकते हैं। कमी नहीं है, सिर्फ दिक्कत यहाँ आती है कि अगर आपके फिक्स्ड आइडियाज हैं दिमाग में, तो वो तो नहीं मिलने वाले ना। वही मैं कह रहा था, राइट सर। अपनी आंखें अपने दिल की दुनिया से जोड़ो, जो सामने है उससे कनेक्ट करो, जो सामने है बिल्कुल अपने आप। सर। अभी एक कमेंट्स में एक बड़ा, एक अच्छा सजेशन है, आप माइक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी, अगर हाँ, आपके पास एक मैक्रो लेंस है। वो भी कर सकते हैं, नहीं करने को क्योंकि तो। मैं, जी हाँ जी सर। बिल्कुल। और मान लीजिए कि यार एक कबूतर ने आपके घर, वहां घर बनाया है, घोंसला बनाया है, या चिड़िया आती है वो भी सब्जेक्ट मैटर है ना। कुछ भी हो सकता है, सवाल ये नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अगर आप ढूंढ रहे हैं नया, और हर चीज जो आपके आसपास है उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आइडियाज तो मिलते रहेंगे।
लेकिन अगर आप अपने बिल्कुल दिमाग के सर। बोझ से, हिसाब किताब से, आइडिया से करना चाहते हैं, वो दिन नहीं है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि क्रिएटिविटी दिमाग से आगे होती है, दिमाग के बिना होती है, नहीं, दिल से होती है। और दिल सबके पास है ना, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पॉइंट जो है ये समझने का है कि फोटोग्राफी, अच्छी फोटोग्राफी सिर्फ दिल से होती है, दिमाग से तो दूसरों की कॉपी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी एक वी गॉट अ क्वेश्चन सेइंग दैट आपको भी पता है स्मार्टफोन कैमरास आर बिकमिंग वेरी एडवांस्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट फील्ड। तो कंपनीज काफ़ी आजकल एडवर्टाइज भी करती हैं दैट देयर सेल फोन कैमरास कैन रिप्लेस योर डिजिटल कैमरास और योर एसएलआरस। थॉट्स अबाउट दैट सर? देखो, ऐसा कर बताता हूं मैं आपको। एक चाइनीज कंपनी ने इंडिया में फोन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है सर। तो वो मेरे पास आए कि देखिए, ये हमारे फोन में 24 मेगापिक्सल है। तो मैंने कहा, तुम्हारे फोन में जो 24 मेगापिक्सल कैमरा है, उसका सेंसर जो होगा टीनी मीनी होगा, है ना। वो डीएक्स फॉर्मेट भी नहीं हो सकता, वो फुल फ्रेम भी नहीं हो सकता, वो तो उसका कहीं 1/20 हिस्सा होगा। मैंने कहा उसमें बिल्कुल सर, क्वालिटी भी नहीं आएगी। 24 मेगापिक्सल इज नॉट इनफ, साइज ऑफ द सेंसर ऑल्सो मैटर्स। तो उन्होंने बिल्कुल कहा, सर, हमने टेस्ट किया, इट वॉज गुड क्वालिटी, पर लेंस तो फिक्स्ड है, और बिल्कुल। लो लाइट में वो इतनी डिटेल्स का मजा भी नहीं था। इन एनी केस, so they asked me, what can we do with this? I said we can do a book and an exhibition on India. So outdoor pictures मैंने की, but that was a money making project. उसके बाद राइट मेरे पास आईफोन है, बहुत सारे लोग आईफोन से भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि मी एज अ प्रोफेशनल, am I ready to sacrifice quality? इवन डीएक्स फॉर्मेट भी जो है, जो लाइट वेट छोटे कैमराज हैं, जैसे 5600 इज माई फेवरेट। राइट सर। तो मैं उसको यूं ही ऐसे जैसे जेब में रख लिया, विद उसमें जो 1685 लेंस आता है, विच इज बिग इनफ रेंज फॉर मी। तो मैं किसी भी कीमत पे ये इस ऐसी इंटेलिजेंस में नहीं जाऊंगा कि मैं आईफोन से या सेल फोन से कैमरा से फोटो खींचूं और दुनिया को दिखाऊं कि देखो जी, वाह वाह मैं क्या कर रहा हूँ। कल को मैंने बड़ी बुक करनी है, मैंने एग्जीबिशन करनी है, मैंने 3 फीट बाय 4 फीट का प्रिंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल और सर, प्लस बिल्कुल। इसमें जूम लेंसेज की अवेलेबिलिटी ना होना, अब तो शायद दो एक लेंसेज भी देने लग गए कैमरा। बिल्कुल सर, पर देखो, बिल्कुल। सेल फोन इज अ प्लेफुल थिंग, खेलो। लेकिन जो सीरियस फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, दे कैन नॉट इंडल्ज इन दीस स्टूपिड थिंग्स। राइट सर, राइट, वेरी ट्रू। काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं ऑफ अ सेल फोन कैमरा। Well, it can't be replaced by a, cell phone. राइट No. सर, राइट, राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर एक तो कुछ स्टार्टिंग फोटोग्राफर्स हैं, द बिगनर्स, दे आर आस्किंग फोटोग्राफी तो हम सीख रहे हैं बट ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अर्न। if you could give suggestions on that, on those respect, ki how do you start taking paid assignments, how do you start making money in the business, sir? मतलब जो यंग फोटोग्राफर्स हैं, Right, so they're just starting out. how to How make, to get paid assignments, sir? How to make money in the field of photography? but with regular professional cameras. Right, sir, right, right. हाँ, बस बात वही आती है कि आपको जो भी असाइनमेंट दी जाती है, उसमें आपको सेंसिटिव मोमेंट्स ढूंढने हैं, आपकी फ्रेमिंग बढ़िया हो, आपके मोमेंट्स अच्छे हों, ताकि देखने वाला भी जो है उसको वैल्यू करे कि भाई आपने कुछ खास पकड़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब आपने खास पकड़ा है, तो वो जो क्लाइंट है या जो भी आपको चाहता है कि आप कुछ उनकी फोटोग्राफ्स कर दें या फैमिली की फोटोग्राफ्स कर दें, तो वो उसको वैल्यू करेगा, एंड देन यू बिल्कुल, चार्ज गुड मनी, एंड यू बिकम बेटर एंड बेटर। हमने भी क्या किया था, हमने भी तो ऐसे ही शुरू किया था ना, कि कोई बिल्कुल सर।
इनिशियली मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने घूमता था और सुबह से शाम फोटो खींचता था। फिर उसके बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो तैयार किया, फिर मैं हिंदुस्तान टाइम्स को दिखाया, उन्होंने मुझे कहा ठीक है हम आपको दे देंगे जॉब। इसी तरह करके बिल्ड अप होता है। यू हैव टू बिल्ड इट अप slowly, with special moments, with special feelings, and with special राइट awareness कि मैं नया काम करूँगा। राइट। एंड आई थिंक सर इनिशियली थोड़ी लोगों को अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट्स आती है तो हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि शुरू में हार्डशिप्स तो आएंगी सर। यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट देम, यू जस्ट हैव टू परसिवियर। देखो वो तो होता ही, एस्टेब्लिश होते होते कई साल बीत जाते हैं, है ना। बिल्कुल सर। तो जब कैमरा उठाया था तो हमें कोई जादू थोड़ी हो गया था कि हमने कैमरा उठाया और दुनिया जीत ली। कि जैसा बिल्कुल सर। सारा सारा दिन भटकते थे, फोटो खींचते थे, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाया, धीरे धीरे लोगों को मिले, धीरे धीरे पिक्चर्स छपने लगी, फिर जॉब मिल गई, फिर बाहर के मैगजीनों में भेजने लगे, धीरे धीरे वहां छपने लग गई। तो बात बनते बनते ही बनती है। अब राइट सर राइट। देखो बात, जो इम्पोर्टेंट बात जो फोटोग्राफी में लोग भूल जाते हैं वो ये है कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर, साइंस इंजीनियर, व्हाटएवर इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, कोई भी सीरियस प्रोफेशन करना है, 5 साल लगते हैं और लाखों रुपया लगता है। फोटोग्राफी में लोग सोचते हैं कैमरा उठाया और रंग बिरंगी तस्वीर खींची है तो पैसे भी आने चाहिए। ऐसा कैसे होगा? आप कम से कम ट्रू सर। 1.5-2 साल तो लगाओ अपने आप को इस्टेब्लिश करने में कि आप अलग हैं दूसरों से, आप नया ढूंढते हैं, बिल्कुल सर। तो अपने आप बात बनेगी। Right, sir. Very true, sir. Sir, I think unfortunately we are coming to the end of the session, sir. Last final parting words for all our viewers, sir. भाई जो कैमरा उठाता है, जो फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसके 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये Right, है कि जब आप कैमरा उठा लो तो यू शुड हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू वॉक इनटू एनी सिचुएशन एंड टेक पिक्चर्स। very हमारे true, sir. सेंटर में भी यहाँ पे कोई कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसको डर लगता है कैमरा उठाते हुए, पर फोटोग्राफर बनना चाहता है तो करेज तो करनी True. पड़ेगी। मतलब यूं समझो कि आपने अपने आप को ये बताना है कि जब when there is camera in your hands, you are a man with machine gun, you are going to win the world। पहली बात Right, sir. है। दूसरी बात जो मैंने पहले बताई कि ये दिमाग जो है, जो स्टोर हाउस में जितने भी आइडियाज हैं अच्छी पिक्चर्स के, do not take all those good pictures which you've seen before, which are stored here। जब आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देती है और आप नहीं खींचते तब क्या होता है? तब आप चैलेंज करते हैं अपने आप को और सिचुएशंस को, और जब आप वो नहीं खींचते हैं तो नेचर जो है तब वो आपको कुछ अलग देती है। Right. होता क्या है कि इनसिक्योर होके हम वैसी तस्वीर खींचने लग जाते हैं जो हमने देखी हुई, तो हम भी बिल्कुल सर। ऐसी ही रंग बिरंगी तस्वीरें बना बना के अटैक करते हैं इंस्टाग्राम को या दोस्तों को कि देखो हमारी तस्वीर। तो do not take all those good pictures which are stored in your head or which you've seen before। When you will reject that, stop that, then only nature and your mind, your spirit, your feelings will allow you to see something different। Right, sir. ये Right. पॉइंट Very true. बहुत जरूरी। ये दो बातें, एक तो डेडिकेशन, यू हैव टू बी एट इट। कैमरा उठाया है तो आपके बाप का राजा, आप फोटो खींचेंगे, ठीक है। दूसरे, आपने वो अच्छी तस्वीरें खींचनी नहीं जो आपने देखी हुई है पहले, तभी आपको नया मिलेगा। बिल्कुल और सर। तीसरी बात यह कि इट्स अ कॉन्टिन्यूअस अफेयर, दिन रात एक करना, तब Right, sir.
ये दुनिया जो है कामयाब होगी और आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा। लेकिन हाफ हार्टेडली कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा ये कर लें, तो उससे दुनिया नहीं बनती। और जो कला की दुनिया, जो फिल्म की दुनिया, जो क्रिएटिविटी की दुनिया है, वो डेडिकेशन और दिन रात परसू करने से बनती है और हमेशा नया नया ढूंढने से बनती है। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। No one could have said it any better, sir. Yeah. Uh, Unfortunately, we'll have to end this, sir. चलो, all Thank the you best. so much. Thank you so much for coming, sir. Thank you so much. And all the viewers, stay home, stay safe. Thank you for joining us. Yeah, thank you.